बीजापुर की एक प्रसिद्ध एजुकेशन संस्था डैफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर अचानक पेरेंट्स को एक झटका लगता है जब पेरेंट्स रिज़ल्ट कलेक्ट करने के लिए मार्क्स का रिज़ल्ट देखने के लिए जब स्कूल्स को आते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि इस एकेडमिक ईयर से डैफोडिल्स स्कूल बंद हो रही है, आप अपने बच्चों को जहाँ चाहे वहाँ दाखिला ले सकते हैं। ये खबर सुनकर जो पेरेंट्स हैं दंग रह जाते हैं, शॉक होता है और वो जो है यहाँ पर जमा है। आइए इन्हीं से क्या माजरा है पूछते हैं। क्या एजुकेशन स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से क्या कोई उन्हें नोटिस मिली है या उन्हें पहले से इतला दे चुके हैं? ये तमाम चीज़ें जो है उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। निम्ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನಮಗೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ತನ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಇದು ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೋಡಿನ ಎಲ್ ಸಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದು? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಾಕತ್ಯಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು? ಈಗ ನಮ್ಮ 2 ಹುಡುಗರು ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, 2 ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಚ್ಬೇಕಾರೆ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದ. ಈಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೈತಿ ಇದ್ರದಿಂದ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕದು. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮಂತ್ಸರ ಮೊದಲಾರ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಏಕಾಏಕಿ ರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿವಸನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿವು ಅಂತಂದು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ DDPI BO ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಎಂದು ನೋಡಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟಿಸು ಐತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ವಿಷಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಟೀಚರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ? ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ನವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿವು. ಬೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವರು LC ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಟ್ಟ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ LC ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. 40 ಹುಡುಗರು RT ಅದಾವು ಮತ್ತು 480 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ. ಇದಕ್ಕೆ DDPI ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆನ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ RT ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. रिजल्ट लेने आने को मार्कस कार्ड को देने लगे. वो कई को करने को नहीं स्कूल क्लोज कर रही करके वो हमना शाक लगे. तो हुआ कल से भी हम इधर ही है, स्कूल में छे. कल से भी शाम तक भी आते. अभी कौन प्रिंसिपल मिले तुम? मिले, कल भी मिले, आज भी मिले. क्या नहीं हमें क्लोज कर रहे, वो तब बोल रहे. ऐसा एकदम बंद नहीं करना है ना, क्या है DDPI वो सब मिलकर एक एक्शन लेना, फिर ही ओपन करने की कोशिश करना. बहुत से तलबा यहाँ पढ़ को गए. क्या अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट क्या रिस्पांस नहीं है ज़्यादा यहाँ. क्या भी बोले तो प्रिंसिपल वो P1 जैसा बोलता क्लोज कर रहे हैं. हमें एक नोटिस नहीं है, क्या भी नहीं है, कैसा क्लोज करते हैं? हाँ, कोएड है क्या? कोएड नहीं है, सब जगह कोएड है. जरा क्या तो सिस्टम से एकदम ये सब प्राइवेट स्कूल जितने भी है सब है, जैसा दरबार है और हमारा रुकमांग है, उन्होंने सब चालू करें. इसे क्या है बोला, अभी प्राइवेट स्कूल दूसरे भी हैं सर, तो उसके हिसाब से दूसरे स्कूल वाले तो नहीं कर रहे क्लोज, फिर इन्हों की कर रहे हैं और बाद में कर रहे हैं कर बोले तो क्या भी एक इन्फॉर्मेशन पहला देना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या भी दे नहीं. और इन्हों आए थे वो कौन DDPI ऑफिस से कौन तो भी आए थे शायद, उन्होंने आँख को बात करे उनके साथ में. दोनों भी एज बोल को गए, क्या बोल को नहीं तुम्हें जैसा परमिशन दिल्ली सिलेबस से जो लेते हैं CBS का, वैसा उसे बंद करने का भी एक प्रोसीजर रहता. उसके हिसाब से तुम्हें प्रोसीजर से बंद कर सकते हैं. एकदम सडनली तुम्हें नहीं बंद कर सकते. अगर तुम्हें बंद करे, अगर TC को सही कर को अगर प्रिंसिपल दे तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता करके बोल के गए उन्होंने. तो हमना को भी बोला ही 1-2 दिन वेट करो, तुम्हें बोला ही क्लोज करने नहीं आता उनको. फिर भी उन्होंने क्या भी एक रास्ता कर को देते हैं हमें, वैसा तो उन्होंने बंद नहीं कर सकते कर को बोला.
परमिशन लेटर भी नहीं दे रहे और दूसरे कॉलेज में सीधा सीधा बोल रहे जब बेंगलोर जाकर परमिशन लेटर लाए तो एडमिशन दे दें तुम्हारे को। इनका काम है ये हाँ प्रिंसिपल का काम है। पहले प्रिंसिपल बोलना, मैनेजमेंट बाद में रहती कि नहीं की। पहले हमें प्रिंसिपल से क्वेश्चन करने वाले जाको, उन्हें आंसर करना मना। मुलाकात हुई है प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल से अभी नहीं हुई, अभी जा रहा हूँ प्रिंसिपल को मिलने के वास्ते में। हमने भी मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन नहीं है उन्होंने। आप जरा लेकिन आप आगे क्या करेंगे? आगे क्या नहीं, अभी इनकी वो सीधा सीधा वकील को लेकर आना एक, या तो फिर हाँ सीधा वकील को लेकर आने का। हाँ वो पहले रिटर्न लेने का इनके पास से, इन्होंने रिटर्न देना, हम स्कूल बंद करें तुम ये करो बोल को लिख को दो बोलना हमारे को। तो इससे पहले आपको नोटिस नहीं हुई कि स्कूल बंद हो रही? नहीं बगैर नोटिस के कल रिजल्ट के दिन डायरेक्ट वो भी टीचर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। मैनेजमेंट का वो क्या तेजपाल आया है नहीं सामने, तेजपाल गुप्ता सामने आया नहीं ज़रा भी। तो या तो फिर हमारा वो डोनेशन जो डेवलपमेंट फीस बोल के लिए सोई, अब हमारे बच्चे अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो उन्होंने क्या करना, वो 1 साल के वास्ते तुम्हें डेवलपमेंट फीस लेते हैं बोले तो अभी आपकी बात मैनेजमेंट से भी नहीं हुई? नहीं अभी मेरे कम से कम 22 बच्चे यहाँ से पढ़ के गए सोई हमारे घर से। प्रिंसिपल से मुलाकात करने की कोशिश की, सच को जानने की कोशिश की तो प्रिंसिपल तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल मैडम ने हमें ओरली बताया कि कोविड की वजह से जो है हाफ पेमेंट भी किए हैं लेकिन मैनेजमेंट सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए 480 बच्चे जो नर्सरी से लेकर 10th तक यहाँ पर पढ़ते हैं तो उन्हें जो है हमें जो है उन्हें स्कूल बंद किया जा रहा है। मैनेजमेंट से ये फ़ैसला लिया गया है, लेकिन हमने जब पूछा कि बच्चों के भविष्य के बारे में तो उन्होंने कहा कि एकेडमिक ईयर पूरे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर चुके हैं। एकेडमिक ईयर जो है जुलाई से शुरू होता है। अभी 3 महीने पेरेंट्स के सामने हैं, वो अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करने का उन्हें माकूल वक्त भी अभी है, इस तरह से वाइस प्रिंसिपल मैडम ने भी बताया। लेकिन शिक्षण अधिकारियों ने भी यहाँ पर विज़िट किए हैं और शिक्षण अधिकारियों से भी उनकी बात हुई है। अब देखना बाकी है कि 480 बच्चों का भविष्य शिक्षण अधिकारी क्या करते हैं, कि कोई इसी स्कूल में कंटिन्यू करते हैं या दूसरे स्कूल में उन्हें दाखिला दिलाने की कोशिश करते हैं, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सद्दाम के साथ में खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। आपके घर की खूबसूरती का साथी A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स। अपने घर की खूबसूरती के लिए हर तरह के फर्श, बाथरूम टाइल्स और आंगन को दिलकश बनाने पार्किंग टाइल्स और चमकदार वेट्रीफाइड और कड़पा कम दामों में आपके बजट और आपके सपनों के घर का हमें है ख्याल। आकर्षित और मन मोह लेने वाले डिजाइन के साथ आज ही विजिट कीजिए A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, हथनी रोड, पुष्कर नगर, SYN 752 बीजापुर। मोबाइल संख्या 8073639921 7411651430 पर।